Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today I'm going to talk about an essay which has recently touched me and it has influenced me to a great extent. So I thought of sharing it with you all. So this essay was prescribed in my syllabus and it is written by Ralph Waldo Emerson. He has written this Self-Reliance, Oversoul and many other such essays. So in self-reliance, basically talks about the importance of trusting yourself. He says, trust thyself, trust yourself, and that's the key. So self-reliance was written in 1841. It is written by Ralph Waldo Emerson, and he's a transcendentalist poet. So, a transcendentalist philosopher means that those who believe in the philosophy of transcendentalism. So, transcendentalism was basically a philosophy in which they emphasized that all the soul unite with God, and that does not happen with their birth. They can do this eventually by acquiring some traits through their karmas or through their activities. So basically, Emerson said that every individual should avoid the need for conforming to the foolish consistency, to the false consistency, and one should follow one's own ideas and one's own instinct. Means he meant to say that whenever you happen to get an opportunity to do something, there is always your intuition and your soul telling you to do something rather than something else. So he believed that, he emphasized that. तो सेल्फ रिलायंस में कुछ फेमस कोटेशंस हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि अ फुलिश कंसिस्टेंसी इज़ होप गोबलिन ऑफ लिटिल माइंड्स, मतलब कि जो मूर्खता वाली कंसिस्टेंसी होती है, जो दूसरों को फॉलो करने की आदत, जो समाज के रीति रिवाजों को फॉलो करने की आदत, ये छोटे लोगों के काम है. But what is genius? Genius is to believe in your own thought, to believe what is true for you in your private heart is true for all men. कहने का मतलब है कि जीनियस वो होता है जो ये विश्वास करे अपने जो विचार वो कर रहा है वही सही है. ये विश्वास करना कि जो उसके दिल में उसे सही लग रहा है वाकई में वही सही है और महान लोगों को भी वही सही लगता है. इसके उलट आजकल हम ऐसे लोग देखते हैं जो अपने खुद के विचारों पर विश्वास करने से झिझकते हैं. तो इस ऐसे में कहा गया है कि मॉसेस, प्लेटो, मिल्टन जैसे बड़े बड़े लोगों के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो ट्रेडिशन को डिसरिगार्ड कर कर, ट्रेडिशन से अलग हटकर अपने खुद के विचारों को सामने रखते थे. लेकिन आजकल बहुत से लोग अपने खुद के विचारों को तवज्जो नहीं दे पाते हैं. दे ओनली डिसरिगार्ड देयर थॉट्स, मतलब अपने खुद के विचारों को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं. बाद में फिर पाते हैं कि वही विचार महान लोगों के वर्क्स में लिखे गए हैं. सो दिस ऐसे बेसिकली टेल्स अस that our thoughts are the most important and they are the thoughts similar to the great man. And also our if we do not recognize our thoughts, later someone else will take the recognition by writing them, and then we will be following that. So next he says that society requires conformity, means to not to follow our own soul but to do what is mentioned or what is according to the social norms. So that is what society wants from us. मतलब सोसाइटी चाहते हैं कि हम बस दूसरों को फॉलो करें, लेकिन एक व्यक्ति अगर उसे खुद में विश्वास करना है, खुद में रहना है और खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलना है, तो उसे समाज से अलग हटकर चीज़ें करनी होंगी. कोई भी चीज़ पवित्र नहीं होती बल्कि इंटीग्रिटी ऑफ योर ओन माइंड, मतलब कोई भी चीज़ इतनी पवित्र नहीं है जितनी कि आपके खुद के अपने आप पर भरोसा करना. कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम कह नहीं सकते. ये इन सब के कॉन्सेप्ट्स मीनिंगलेस हैं. अगर लोग अपने आप में ट्रू हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने से सत्यवादी रहते हैं, अपने आप से ऑनेस्ट रहते हैं, अपने थॉट्स से लॉयल रहते हैं, तो उन्हें ये चीज़ चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि क्या सही है क्या गलत है. हम में से जो लोग हैं वो इस में ही परेशान रहते हैं कि दूसरे उनके
जो जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं, दूसरों के लिए वो व्यवहार ठीक है कि नहीं है। इस ऐसे में आगे ये कहा गया है कि जो वर्चू की क्वालिटी है, मतलब लोग अच्छा ही दिखाना चाहते हैं, इसलिए नहीं करते कि अच्छे हैं वो वाकई में, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि अच्छे दिखने से वो समाज में जीने लायक बनते हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र रहना है, अकेले रहना है, तो बहुत ही मतलब स्वतंत्र रहना अकेले में ठीक होता है, लेकिन जो महान व्यक्ति रहते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को तब भी मेंटेन करते हैं जब वो दूसरों के साथ रहते हैं। मतलब उन्हें वो दूसरों के सामने भी वैसे ही रहेंगे जैसे वो अकेले में रहते। आगे ये है कि अगर हम Now, the essay further tells us that if one conforms, means if one follows others, it's like someone is acting as a lawyer who's speaking on someone else's behalf. कहने का अर्थ है कि यदि हम किसी और की नकल करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाती हैं चीज़ें, प्रिडिक्टेबल होती हैं, क्योंकि पता होता है आप इसके बाद क्या करने वाले हैं। और उसके अलावा यदि हम किसी और को फॉलो करते हैं तो वो जो कंटेंट होता है वो इन ऑथेंटिक होता है, क्योंकि क्या क्या विश्वसनीयता है उस कंटेंट की, उस एक्शन की, ये हमें पता नहीं होता। और इसके अलावा जो कंफॉर्मिटी है वो टेम्पटिंग होती है, हमें बहुत ललचाती है, क्योंकि जब हम कंफॉर्मिटी जैसा चला आ रहा है वैसा करते रहेंगे तो कोई हमें क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि लोग भी यही चाहते हैं कि जैसा चला आ रहा है वैसे ही चले, कंसिस्टेंट रहे। लेकिन नॉन कॉन्फॉर्मिटी जो है उससे दूसरों को गुस्सा आता है। तो एक व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों के क्या ओपिनियन है। और ये जो मूर्खों जैसी कंसिस्टेंसी होती है, ये छोटे दिमाग वाले लोगों का काम है। जैसा कि इमर्सन कहते हैं, किसी भी व्यक्ति को ये डर नहीं रहना चाहिए कि वो मिसअंडरस्टूड होगा, मतलब लोग उसे गलत समझेंगे, क्योंकि जो जो मिसअंडरस्टूड हुआ है वही महान बना है। तो यही कहा इन्होंने कि टू बी ग्रेट इज़ टू बी मिसअंडरस्टूड। उसके बाद आगे वो बताते हैं कि जिस चीज़ पे हमें भरोसा करना चाहिए वो है हमारा इंट्यूशन, वो है हमारी इंस्टिंक्ट, वो है हमारी स्पॉन्टेनिटी। मतलब जो हमें अचानक से लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें एक्चुअली में वैसा ही करना चाहिए। इसे हम सोल भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। ये वो जस्टिस है, वो विजडम है जो दूसरे लोग, जो हमें भगवान डायरेक्टली दे रहा है। ये भगवान की एक तरीके से इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, जो इंट्यूशन के फॉर्म में हमारे अंदर आती है। और इसमें किसी भी तरीके की शिक्षा, ट्रेडिशन या फिर किसी भी टेक्स्ट को कि ऐसा कहा गया हो कि इस टेक्स्ट से पढ़ा, ऐसा किया, ये नहीं होता। डायरेक्टली हमारे अंदर इंट्यूशन आता है जो कि भगवान हमें देता है। तो लोग जो हैं उनके पास कई बार करेज नहीं होता, कई बार इतना साहस नहीं होता कि वो अपने इंट्यूशंस को फॉलो करें, और हमेशा किसी और दूसरी अथॉरिटी को हमेशा कोट करते हैं, और जो खुद सोचते हैं वो कभी भी कह नहीं पाते हैं। पेड़ भी बहुत कमज़ोर होते हैं, पेड़ भी इतने कमज़ोर नहीं होते, हमेशा वो खुद की आइडेंटिटी बनाते हैं। गुलाब जो हैं वो रोजेज आर सिंपली देमसेल्व्स विदाउट मेकिंग एनी रेफरेंसेस टू फॉर्मर और बेटर रोज। टू बी हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग पीपल मस्ट लिव इन द प्रेजेंट। गुलाब जो हैं वो भी अपनी ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, और ये सहारा नहीं लेते कि कोई बेटर रोज़ ने क्या कहा या कोई पहले के जो हमारे रोजेस थे वो क्या कहते थे। वो सिर्फ अपनी बात रखते हैं। तो खुश रहने के लिए और ताकतवर रहने के लिए लोगों को ऐसे ही रहना चाहिए, प्रेजेंट में रहना चाहिए जैसे कि रोजेस रहते हैं। उसके बाद जैसे कि लोग हमेशा यूजुअली बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमारा समाज तो विकसित हुआ है, तो ये एक इल्यूजन है, ये एक छलावा है। सोसाइटी लगातार बदलती तो है, लेकिन एक तरीके से अगर वो बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, तो दूसरी तरीके से उसका डाउनफॉल हो रहा है। सभी लोग जो हैं उनके पास बहुत हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें हों जिन्हें वो अपनी प्रॉपर्टी कह सकें, लेकिन उनके पास हेल्थ कम होती जा रही है। उसी तरीके से जो महान महान थिंकर्स हैं वो ऐसे लोग थे, और उन्होंने कभी भी मोरालिटी प्रोग्रेस की बात नहीं की। मतलब उन्होंने लोगों के लिए मोरालिटी प्रोग्रेस की बात इसलिए नहीं की क्योंकि उनका ये मानना है कि समाज में मोरालिटी यानी नैतिकता को नहीं सिखाया नहीं जा सकता। ये एक व्यक्तिगत मामला है।
इमर्सन ने आखिर में ये कंक्लूड किया कि किसी भी एक चीज़ पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए खुश रहने के लिए। कोई भी चीज़ हमारे अंदर शांति नहीं ला सकती। बाहर का कोई भी इवेंट नहीं है जो हमें पीस ला सके। कोई भी बाहर का इवेंट नहीं होता या किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं होता जो हमें अफेक्ट करे। जो सबसे ज़्यादा खुश रहने के लिए ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने सिद्धांतों को फॉलो करें। आ- आखिर में यही एक लाइन को कोट किया गया है कि इमिटेशन इज सुसाइड। टू फॉलो समवन इज टू कमिट सुसाइड। इफ यू आर फॉलोइंग समवन यू आर नॉट लिविंग योर ओन लाइफ एंड इट्स लाइक नॉट लिविंग योर लाइफ एट ऑल। So that is it. Thank you everyone for watching this video. I hope you liked this video. Please share, comment and like. Thank you everyone.